The stock that has been purchased but not yet sold, unsold goods. जो unsold goods रह गए हैं business में, they are called as closing stock. So are they current year's expense or next year's expense? What do you think? current. 1 लाख का गुड्स आपने खरीदा हुआ है, इसमें से 10,000 का गुड्स बच गया, दैट्स योर क्लोजिंग स्टॉक. So is this closing stock 10,000 current year's expense or next year's expense? Is an asset हाँ, for the current. expense है कि नहीं है वो मैं पूछ रहा नहीं है. हूँ. नहीं है. It is not current year's expense, it is next year's expense. लेकिन हमने तो डाल दिया है परचेज में, तो अभी इसको रेक्टिफाई करना है, इसको निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज में से निकाल देते हैं बाय राइटिंग इट ऑन ट्रेडिंग क्रेडिट एंड वी शो इट एज एन एसेट ऑफ करंट ईयर. क्यों एसेट? क्योंकि नेक्स्ट ईयर बेनिफिट मिलना बाकी है. नेक्स्ट ईयर बेचोगे तो पैसा मिल जाएगा, ये एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का है, इस साल के एक्सपेंस में से रिमूव करना है और सेकेंड इफेक्ट कहाँ दिखाना है, एसेट में. So basically, what are the two effects of closing stock? We learned that in the last lecture. What are the two effects of closing stock? It is trading account, credit side, and asset. Trading account, credit side, and asset. Why trading credit? Instead of subtracting from purchase, you show it on the credit side. Instead of subtracting from the purchase part, you show it on the credit side. Meaning is one and the same. Meaning is one and the same. Did you all get that? ओके, सो रिमेंबर दिस. क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल का बचा हुआ स्टॉक, इस साल का एक्सपेंस नहीं है. व्हाई डू वी रिमूव इट? ड्यू टू दैट मैचिंग कंसेप्ट, बिकॉज वी नीड टू फॉलो मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? एक साल में अगर आपने 100 यूनिट्स परचेज किया है और 70 यूनिट सेल किया है, तो आप 100 यूनिट्स का परचेज मत दिखाओ, आपका मिसमैचिंग हो जाएगा, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा. परचेज साइड भी 70 यूनिट्स दिखाओ, सेल साइड भी 70 यूनिट्स दिखाओ, 30 यूनिट्स को निकाल दो, उसके क्लोजिंग स्टॉक को निकाल दो, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में दिखाओ. ओके, so this year we'll remove the closing stock from the trading account from our expense and we'll shift it to balance sheet asset. We'll shift it to balance sheet asset. That will remain as our asset for the end of the year. Next year it will become an expense and we will show it under trading debit. Next year we'll show it as an expense in the trading debit. Is this part clear? Closing stock, बैठा दिमाग में सबके? What are the two effects of closing stock? All of you understood? What are the two effects of closing stock? Firstly, that if our incomes are not equal to the नहीं, two effects I'm asking. What will you do we in the record final it. account? We Trading account, credit side, and assets. asset Okay, trading account, credit side, and assets. These are the two effects expense for next of year. closing stock. Expense will reduce and assets will increase. Expense will reduce and assets will increase. तो adjustments क्या होते हैं? Adjustments, ये एक एग्जाम्पल है आपका रेक्टिफिकेशन का. रेक्टिफिकेशन आपने किया था, याद है? फर्नीचर Yes. परचेज रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेजेस. आपने फर्नीचर खरीदा है, गलती से परचेजेस में डाल दिया, तो आप क्या करते हो? फर्नीचर टू कैश का हो गया परचेज टू कैश, रिवर्स कैश टू परचेज, रेक्टिफाइड इज फर्नीचर टू परचेज. तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है, परचेज क्रेडिट हो रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है, परचेज कम हो रहा है. यही चीज आप फाइनल अकाउंट्स में दिखा रहे हो स्टॉक के थ्रू. स्टॉक में भी यही हो रहा है, परचेज कम हो रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है. Is this part clear? So closing stock was the first adjustment that we dealt with. अच्छा, और एक चीज हमने लर्न की थी, क्लोजिंग स्टॉक कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे, कि जो कम होता है उस पे? The lesser one. Lesser one. It is recorded at cost or market price, whichever is less. Whichever is less. ये भी बताया था, याद है, कंजर्वेटिज्म के हिसाब से. ओके, कम वैल्यू पे दिखाओगे तो लॉसेस एडजस्ट हो जाएंगे, अभी से लॉसेस दिख जाएंगे, फ्यूचर में वो लॉसेस दिखाने की जरूरत नहीं. तो क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, whichever is less. Whichever is less. Is that clear with the first adjustment? Closing stock that we saw, we did a sum also. Second adjustment, okay? अभी ऐसे कितने एडजस्टमेंट है सर? तो ऐसे n number of adjustments हो सकते हैं. I told you just now,
एडजस्टमेंट का मतलब है अनरिकॉर्डेड एंट्रीज। एडजस्टमेंट का मतलब होता है अनरिकॉर्डेड एंट्रीज। ओके, नॉर्मली कोई एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है तो आप क्या करते हो, जर्नल में डालते हो, वहां से लेजर में डालते हो, वहां से ट्रायल बैलेंस बनाते हो और वहां से फाइनल अकाउंट्स बनता है। नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन ये नॉर्मल रूट है, नॉर्मल एंट्रीज का रूट है। एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब क्या है, एडजस्टमेंट एंट्रीज भी अनरिकॉर्डेड एंट्रीज है, लेकिन वो ये नॉर्मल रूट फॉलो नहीं करती है। They don't follow this normal route. What do we do? Adjustment entry, they get directly a VIP entry into the final accounts. वो ये steps follow नहीं करेंगे, जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ये नहीं करेंगे। सॉरी, डायरेक्टली this adjustment will be entered in the final account. डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में इफेक्ट दे दो। एक बार फाइनल अकाउंट में दे दिया मतलब रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया मतलब नेक्स्ट ईयर में आ गया ऑटोमेटिकली ओपनिंग वैल्यूज में। तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दिस लंबा रूट, एडजस्टमेंट डायरेक्टली एंटर इन द फाइनल अकाउंट। जैसे क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक को हमने थोड़ी जर्नल में, फिर लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में ऐसे करके किया, डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स में डाल दिया। ट्रेडिंग क्रेडिट साइड और एसेट, परचेज से कम और एसेट रिकॉर्ड कर दिया। वैसे ही कितने भी एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ एडजस्टमेंट। Adjustments are nothing but unrecorded entries having a direct effect in the final account. Direct effect in the final account. तो यहां लंबा रूट करने की जरूरत नहीं है, सीधा फाइनल अकाउंट। ओके, फाइनल अकाउंट में हो गया तो रिकॉर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग वैल्यूज में आ जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो इसकी एंट्रीज कहां पे रिकॉर्ड होंगी, कौन सी सब्सिडरी बुक में आप ये एंट्रीज करोगे? आप ये जर्नल मतलब नॉर्मल सब जर्नल एंट्रीज नहीं करते हो, बट ये एडजस्टमेंट एंट्रीज एक जर्नल एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। फिर आप ये लेजर नहीं करोगे, ये ट्रायल बैलेंस नहीं करोगे, डायरेक्टली फाइनल अकाउंट, क्योंकि फाइनल अकाउंट में भी ट्रेडिंग पीएनएल ये लेजर ही है। तो ये कौन से जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, ये एडजस्टमेंट एंट्री कौन से जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं? तो थिंक अबाउट इट, वी हैव डन 7 सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो क्या लगता है ये एडजस्टमेंट एंट्री लास्ट Journal डेट पे proper. कौन से जर्नल में रिकॉर्ड होंगी? Journal तो proper. जर्नल प्रॉपर, याद है वो सार्वजनिक जर्नल, सार्वजनिक जर्नल जो होता है उसी में यू विल रिकॉर्ड दिस एडजस्टमेंट। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक हो गया, तो इन जर्नल प्रॉपर आई विल पास दिस एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। Let us say it was 32,000 in the last sum. So I'll pass this entry, closing stock debit to trading account, and directly VIP entry in the final accounts. Trading credit and assets में add. Got that? ये लेजर वगैरह के थ्रू जाने वाला नहीं है। लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये नॉर्मल प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा। डायरेक्टली जर्नल प्रॉपर में एंट्री करोगे, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, और एंटर कर दोगे फाइनल अकाउंट्स। बात समझ आई? वैसे हर एक एडजस्टमेंट, एवरी एडजस्टमेंट ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विल बी एंटर्ड इन जर्नल प्रॉपर in the form of an entry and will get directly a VIP treatment in the final accounts. क्या ये टैली में पॉसिबल है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में पॉसिबल है? नहीं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है, उसमें तो नॉर्मल वे से ही जाना पड़ता है, पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट्स। एवरी डैम एंट्री नीड्स टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस। देयर इज नथिंग लाइक एडजस्टमेंट। ओके, प्रैक्टिकली दिस इज ओनली अ थियोरेटिकल कंसेप्ट व्हेन यू मेंटेन मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब आप एक्चुअल मैनुअल बुक्स रखते हो तब आप लास्ट डेट पे ये एडजस्टमेंट एंट्रीज कर देते हो और इसकी डायरेक्ट इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में डाल देते हो, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। ओके, I'll throw you one more example for an adjustment. Let us say we purchased goods of 10,000 in the current year from Ajay. What is the journal entry for that? We purchased goods of 10,000 from Ajay. Purchase account debit to Ajay. Purchase account debit to Ajay's account.
purchase is expense, Ajay is a creditor, yes or no? And we forgot to record that entry. We forgot to record that entry. We came to know at the time of final account that we forgot. फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे पता चला कि हम भूल गए. तो फाइनल अकाउंट्स के दिन पे हम लोग क्या करेंगे, जर्नल प्रॉपर ओपन करेंगे, उसमें रिकॉर्ड करेंगे परचेज टू अजय. अजय कौन है, क्रेडिटर बेसिकली. तो परचेज टू अजय इज अ क्रेडिटर. हाउ मच, लेट अस से इट वाज 5000. Purchase to Ajay 5000, we'll record that, and now direct entry in the final accounts. Now think about it, how will you give direct entry in the final account? Tell me, purchase बढ़ेगा कि घटेगा? What do you think now with this 5000? Existing purchase जो भी है वो और बढ़ेगा कि कम होगा? creditors increase. बढ़ेगा. Purchases will increase because it was an expense, right? Purchases will increase. ऑलरेडी 1 लाख का परचेज था तो अभी हो जाएगा 1,05,000. 2 लाख का था तो अभी हो जाएगा 2,05,000. बराबर है. सो परचेजेस विल इंक्रीज. सो वन इफेक्ट ऑफ दिस विल बी एड टू परचेज. आप परचेज में ऐड कर दोगे इन द फाइनल अकाउंट्स. एंड सेकेंड थिंग, क्रेडिटर. क्रेडिटर को पैसा देने का बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, वो सोचो. क्रेडिटर को पैसा देने का बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि और क्रेडिट पे खरीदा तो उधार बढ़ गया. तो सेकेंड इफेक्ट विल बी एड टू क्रेडिटर्स. एड टू क्रेडिटर्स. नॉर्मल रूट से जाते ना तो भी यही होता. जर्नल में आप करते परचेज टू क्रेडिटर, फिर पोस्ट करते लेजर में, परचेज में टू क्रेडिटर, क्रेडिटर में बाय परचेज. तो परचेज का बैलेंस बढ़ जाता डेबिट साइड, क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ जाता क्रेडिट साइड. ट्रायल बैलेंस में डेबिट में परचेज आ जाता, क्रेडिट में क्रेडिटर्स आ जाता, और फिर वो फाइनल अकाउंट्स में जाते, ट्रेडिंग डेबिट में परचेज और बैलेंस शीट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स. वो नॉर्मल रूट था. ये एडजस्टमेंट रूट है. एडजस्टमेंट रूट क्या करते हो आप, सीधा जर्नल में एंट्री करते हो और घुसा देते हो फाइनल अकाउंट्स में. उसको घुसा देते हो फाइनल अकाउंट्स में. कैसे घुसा देते हो, प्लस माइनस करके. तो यहाँ पे ऐड टू परचेज क्योंकि परचेज बढ़ गया, एंड ऐड टू क्रेडिटर क्योंकि क्रेडिटर भी बढ़ गए. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. सोचो कि हमने अजय को गुड्स रिटर्न किया था साल में 1000 रुपीज का. वी रिटर्न द गुड्स टू अजय. फर्स्ट टू टेल मी व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर रिटर्निंग गुड्स टू अजय. Ajay to purchase returns. Ajay to purchase returns. Ajay to purchase return. Let us say it was 1000 rupees. तो ये एंट्री रह गई थी. This entry was left to be done. So what we will do at the time of final accounts? ये एंट्री सीधा जर्नल प्रॉपर में जाएगी. ये जर्नल प्रॉपर भी हम लोग लर्न करेंगे चैप्टर के बाद. ये एंट्रीज भी मैं बताऊंगा आपको सब. तो अजय टू परचेज रिटर्न्स, ये एंट्री सीधा जर्नल प्रॉपर में डालेंगे और इसको वीआईपी एंट्री मिलेगी सीधे फाइनल अकाउंट्स. अब सोचने का, फाइनल अकाउंट में कैसे डालोगे इसको. अजय कौन था, तो ही वाज अ क्रेडिटर ऑब्वियसली, क्योंकि हमने उसको गुड्स रिटर्न किया है. एंड परचेज रिटर्न्स, ओके, परचेज रिटर्न्स इज लाइक अ रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस. परचेज रिटर्न्स. अब सोचो ये अनरिकॉर्डेड था पहले, अब रिकॉर्ड किया. Now we record that Ajay to purchase return. So what will happen? What will happen? क्रेडिटर को उधार बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम होगा. कम हो जाएगा ना. खरीदोगे तो पैसा देने का बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगा. अगर रिटर्न कर रहे हो तो कम हो जाएगी लायबिलिटी. यस और नो? तो हम लोग क्या करेंगे, अजय में से मतलब क्रेडिटर में से माइनस कर देंगे. क्रेडिटर कहाँ दिखता है, लायबिलिटी में. तो लायबिलिटी में क्रेडिटर में से विल सब्ट्रैक्ट. हाउ मच विल सब्ट्रैक्ट? 1000. एंड परचेज रिटर्न पहले अनरिकॉर्डेड था, अभी आपने रिकॉर्ड किया परचेज रिटर्न. तो सोचो परचेज रिटर्न क्या होगा, बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? Purchase return will reduce or what will reduce? Purchase will reduce, but purchase return will increase ना. पहले अनरिकॉर्डेड था. Suppose already purchase return was 10,000, so now it will become 11,000. Correct? So already purchase return suppose was 10,000. Now it will become 11,000. So purchase return will increase. So what you can do is add to purchase returns. Or for that matter, you can also
subtract from purchase. It is one and the same thing. Instead of adding to purchase returns, you can subtract from purchase. बात तो एक ही हुआ. तो परचेज रिटर्न में ऐड हो जाएगा या परचेज में से सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है. एंड सेकेंड इफेक्ट क्या किया हमने, क्रेडिटर्स में से माइनस. एडजस्टमेंट का इफेक्ट समझ में आया आपको? क्या किया मैंने? One effect is less from purchase, the second effect is less from creditors. Why did I subtract? It is exactly opposite of credit purchase. परचेज में क्या हुआ था, परचेज बढ़ा था, क्रेडिटर बढ़ा था. परचेज रिटर्न में क्या हो गया, परचेज भी कम हो गया, क्रेडिटर को पैसा देने का भी कम हो गया. आर यू गेटिंग दिस एडजस्टमेंट का थिंग? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? वन मोर एग्जाम्पल. यू सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम. You sold goods on credit to Ram during the year. What is the entry? Sold goods on credit to Ram. Ram to sales. Ram to sales. But if I tell you, you forgot to enter it in the books. Ram to sales, आप books में enter करना भूल गए. ठीक है, भूल गए, कोई बात नहीं है. Final accounts में याद आया. तो final account के दिन ये entry कर दो. Suppose Ram to sale 3,000. Now who is Ram? Is he a debtor or a creditor for us? Debtor. He is a debtor. Now I want to Gaussiify this adjustment in my final account. And sales will increase it by 3,000. Yes, sales will increase. So I will add it to sales. Very good. 3,000. And in balance sheet, in the asset part, we'll add 3,000. To what? To debtors. Very good. Debtors will increase. My sales will increase and my debtors will increase. How are you getting that? सेल्स पहले तो अनरिकॉर्डेड था, अभी रिकॉर्ड किया तो सेल्स बढ़ गया. और डेटर से जो पैसा लेना था अभी और सेल हो गया तो डेटर से पैसा लेने का बढ़ गया. बात समझ में आ रही है? तो ऐड टू सेल्स एंड ऐड टू डेटर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. ओके, ये मैं एग्जांपल ऐसे हवा में नहीं दे रहा हूँ, ये एक्चुअली आप लर्न करोगे आगे. एडजस्टमेंट्स ही हैं आपके ये सब. सपोज मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना था मशीनरी पे 5,000. अभी अभी आपने चैप्टर किया है डेप्रिसिएशन का. ईयर एंड के डेट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो. व्हाट इज अ जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी? Depreciation to machine. Depreciation account debit to machinery. Let us say 5,000. Are you getting this? Depreciation to machine. All of you are with me? Palak Virali, Ishita Pujan, Nishan. Last warning, else will be out now. One more time I find your video off, you'll be out. Okay, no more warnings now. Depreciation की correct entry क्या होती है record करने की? So it is depreciation to machinery. Let us say it was 5,000. Now suppose we forgot to enter it. जो हम लोग chapter में करते थे ना, depri में to machine, machine में by depri. We forgot to record that. तो डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में मार दो डेप्री टू मशीन. अब इसको कैसे घुसाओगे आप फाइनल अकाउंट्स में? सोचो क्या इफेक्ट होगा. Profit and loss account on the debit side will increase depreciation as our expense. Perfect. And on the asset side of the balance Machinery will subtract. reduce the मशीनरी value. विल सब्ट्रैक्ट और विल ऐड? Subtract. सब्ट्रैक्ट. क्यों सब्ट्रैक्ट? Because उसका लाइफ कम हो रहा है ना, उसका बिकॉज value लाइफ कम हो reduce रहा है, वैल्यू कम हो रही है. बात समझ में आ रही है? तो वही होता था रेगुलर बेसिस पे भी, खर्चा बढ़ता. डेप्री वाज एन एक्सपेंस, राइट? सो एक्सपेंस यूज्ड टू इंक्रीज एंड एसेट यूज्ड टू डिक्रीज. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. बट वाया प्लस माइनस, बट वाया प्लस माइनस. दैट प्लस माइनस इज नथिंग बट एडजस्टमेंट डायरेक्टली इन द फाइनल अकाउंट पार्ट. We are doing the same thing, but we are not going by that long route. Journal to ledger to trial balance to final account. We are not going by that long route. We are simply following a shortcut. We entered that entry in a journal proper and टपक सीधा final accounts. सीधा final accounts में record कर दिया. कैसे करना है? Depreciation is our expense. That should go to P&L debit. So P&L debit में add to depreciation. And asset का value कम हो गया तो asset side minus from machine. Asset side minus from machine. Are you getting that depreciation one? Yes, sir, but depreciation should be a direct expense, no? Because machinery is directly related to production. No, here we assume that those machines, okay, or those furniture on which we are charging depreciation belong to office. That is the assumption for your 11th standard thing, okay? Practically, it is very simple. I told you many times,
दिस इज जस्ट द थियोरी पार्ट, ये आपका थ्योरी है, ये प्रैक्टिकली होना ना होना जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकली कंसेप्ट क्या है, अगर आपका एक्सपेंस परचेज प्रोडक्शन से रिलेट करता है, डायरेक्टली वेरिएबल है गुड्स के साथ, तो उसको आप ट्रेडिंग में डाल। गुड्स का परचेज के साथ प्रोडक्शन के साथ फ्लक्चुएट कर रहा है, डायरेक्टली रिलेटेड है, तो आप ट्रेडिंग में डालो। नहीं कर रहा है, अगर वो कम ज्यादा भी करोगे, चेंजेस कर दोगे, बहुत कम करोगे, परचेज प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होगा, तो इनडायरेक्ट में डालो। ओके, अगर डायरेक्टली परचेज प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, उसमें आप ज्यादा कटौती नहीं कर सकते, ज्यादा कम नहीं कर सकते, नहीं तो सीधा एक्टिविटी हैम्पर हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट है। अगर एक्टिविटी हैम्पर नहीं होगी तो वो इनडायरेक्ट है। समझ में आई बात? ये थियोरिटिकल पर्पस के लिए आपको याद रखना है, मैंने तभी भी बताया था, रिपेयर, रेन्यूअल और डेप्रिसिएशन। थियोरी के वक्त याद रखना, अभी भी 11th में भी और 12th में भी जाएगा कहां पे, तो P&L डेबिट, इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, ऑल 3 आइटम्स, रिपेयर, रेन्यूअल, डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस। रिपेयर, रेन्यूअल, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस ऑलवेज अंडर P&L। अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है, कि वो ऑफिस रिलेटेड एसेट्स का डेप्रिसिएशन, not of factory related assets. Is this clear? So only depreciation, repairs, renewals will always be transferred to profit and loss. Assumption, theoretical assumption. Okay. Now, ये वाला पार्ट समझा, डेप्री टू मशीन वाला सबको डेप्रिसिएशन। Same is for depri to furniture. What if it was depri to furniture? How you would have entered this in the final accounts? Depri to furniture कैसे enter होता? Same way, just subtract the amount from Same furniture. way, depreciation is an expense, P&L debit, add to depreciation. And asset में कौन सा asset में से minus होता है अभी? Furniture. Furniture, sir. All of you got that? Is this clear? समझा सबको? Then one more adjustment, okay? Appreciation. You know the opposite of depreciation, that is appreciation. And generally, which asset appreciates? Property. Property. So can you frame a journal entry for appreciation? Property account debit to appreciation. Property account debit to appreciation. Are all of you understanding this? Property to appreciation. Depreciation का opposite है. Property to appreciation. Okay. Let us say it was 5,000. अब we forgot to record this entry. ये entry हम record करना भूल गए, तो फाइनल अकाउंट्स के स्टेज पे डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं इसको। हाउ विल यू एंटर इट इन द फाइनल अकाउंट स्टेज? थिंक, क्या करोगे? The credit side of profit and loss account will show to appreciation, बाय अप्रिसिएशन, by appreciation, बाय sorry, अप्रिसिएशन, या फिर अप्रिसिएशन में ऐड कर देंगे हम लोग, बराबर है। and एंड property. Property we will add. प्रॉपर्टी में प्लस होगा कि माइनस? प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा? प्लस हो Plus. जाएगा। कैसे? लॉजिकली सोचो ना, एसेट की वैल्यू बढ़ी है कि कम हुई है? अप्रिसिएशन मींस व्हाट? Value increase. Value increased, asset value increased, yes or no? Asset value if it is increasing, तो एसेट बढ़ा ना, प्रॉपर्टी समझो 1 लाख का था, 5,000 से बढ़ गया, तो क्या करूं, प्लस करूं कि माइनस करूं एसेट में? सोचो, एसेट का वैल्यू बढ़ गया है तो क्या करूं, एसेट में प्लस करूं कि माइनस? बढ़ेगा ना asset. बढ़ेगा ना, तो प्लस करोगे ना, तो प्लस इन द एसेट, ऐड टू द एसेट, जो भी अप्रिशिएटेड वैल्यू आपकी, उसमें एसेट में बढ़ा दो, एसेट में ऐड कर दो। एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ अप्रिसिएशन? व्हाट इज अप्रिसिएशन फॉर द बिजनेस? It is a gain. It is a gain, right? So direct income or indirect income? Should I Indirect put income. it under trading credit or profit and loss credit? Profit and loss. Profit and loss credit side. Are you understanding this? तो every income and every expense वो कहाँ जाने वाला है? Either trading या P&L में जाने वाला है. And every asset and every liability is going to go under balance sheet. So you have to just ask yourself whether this item is income, expense, asset or liability. And बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है तो add करो, कम हो रहा है तो minus कर दो. That is what is an adjustment. समझ में आया? प्रिया गांधी को समझ में आ रहा है? हितांशी को समझ में आ रहा है?
Rutva, Ishita, Pujan. Are you all understanding? Sir, I'll keep my video off for some time. I got No. disconnected twice. What? I got disconnected twice, beach mein. Acha. But your connection is fine. You can keep it This on, right? one. Okay. पूजन को मेरे को निकालने का है अभी और इशिता को. Now, next one. Suppose I tell you, यहाँ तक क्लियर है? 3 एडजस्टमेंट्स. फर्स्ट वाला हमने लर्न किया था क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक क्या किया? ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स. एक्सपेंस में से रिड्यूस किया, एसेट में बता दिया इस साल को बिलोंग नहीं करता है. सेकेंड एडजस्टमेंट जो अभी आप मैं थियोरी करवा रहा हूं, आप अगर देखोगे आपके नोट्स में, सेकेंड एडजस्टमेंट इन फ्रंट ऑफ यू इन योर नोट्स इज डेप्रीसिएशन. ओके, डेप्रीसिएशन का 2 इफेक्ट समझ में आया. पहले जर्नल एंट्री फ्रेम कर लो. व्हाट इज अ जर्नल एंट्री? डेप्रीसिएशन टू एसेट. तो डेप्रीसिएशन खर्चा बढ़ा, पीएनएल डेबिट, एसेट कम हुआ, तो एसेट में से माइनस. थर्ड एडजस्टमेंट इन योर थियोरी इज अप्रिसिएशन. अप्रिसिएशन का क्या एंट्री होता है? तो एसेट टू अप्रिसिएशन. तो एसेट बढ़ेगा कि कम होगा अप्रिसिएशन में? थिंक. इन केस ऑफ अप्रिसिएशन एसेट वैल्यू विल इंक्रीज और डिक्रीज? Increase. Increase. So add to asset. Can you see that the 2 effects? Add to asset. And what is the second effect? Appreciation is what for the business? Non-cash income. Non-cash income. It is an income basically. So where do you show that income? Trading credit or profit and loss credit? Profit and loss. Profit credit. and loss credit side. Hope that is clear, all of you. Profit and loss credit side, add to appreciation, appreciation income, and assets में value बढ़ गई तो add to asset. Are you getting that? Add less का logic क्या है? अगर existing account है ना तो उसमें add करने का, अगर नहीं है तो नया बता देने का. Okay, existing account है तो minus करने का, नहीं है तो नया बता देने का. तो add less का logic यही है कि existing है तो उसमें add करो, नहीं है तो अलग से बताओ. समझा? डेप्रीसिएशन ऑलरेडी है तो उसमें ऐड कर दो, नहीं है तो अलग से बताओ. अप्रिसिएशन ऑलरेडी है तो उसमें ऐड कर दो, नहीं है तो अलग से बताओ. डेटर्स ऑलरेडी है और अनरिकॉर्डेड सेल्स हो रहा है तो उसमें ऐड कर दो, नहीं है तो अलग से. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो एग्जिस्टिंग एसेट है तो उसमें ऐड करो, वरना अलग से बताओ. दैट इज व्हाट इज प्लस और माइनस का लॉजिक. फोर्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. रिमेंबर व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? Expenses yet to be paid. Expenses Outstanding Payable, salary payable, incurred but not yet paid, incurred but not yet paid. Now we are following which system? Cash system or accrual system? accrual. Accrual system. Okay, accrual. आप मुझे एक बात बताओ, आपकी सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी is 12,000 rupees per year. एम्प्लॉय की सैलरी is 12,000 rupees per year. Okay, और आपने उसको अभी तक पे की है 10,000. You have paid only 10,000. सैलरी है उसकी 12, बट वी हैव पेड ओनली 10. सो ऑब्वियसली अगर हमने 10 पे किया तो हमने क्या एंट्री मारा होगा? सैलरी टू कैश 10,000 पास किया होगा ना. तो सैलरी ट्रायल बैलेंस में 10 दिख रहा होगा और कैश में से 10 डिडक्ट हो चुका होगा, 10 ही पे किया. बट आइडियली पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हो तब सैलरी कितनी होनी चाहिए? Should it be 10 or should it be 12? What do you think? How much salary is your actual expense for the year? 12,000. 12,000, not 10. 12,000. Paid is not important. Incurred is important. Accrual system क्या बोलता है? आप expense pay करो, कितना भी करो, रोकड़ा दो, वो important नहीं है. Ultimately expense कितना दिखेगा? जितना काम हुआ है, जितना incurred हुआ है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाओगे ईयर एंड पे, तो आपका सैलरी 10 नहीं दिखेगा, आपका सैलरी होना चाहिए 12,000. योर सैलरी शुड बी 12. ओके, 12 से ज्यादा भी नहीं, 12 से कम भी नहीं, 12 ही होना चाहिए. तो ही अगेन दैट मैचिंग कम्स इन द पिक्चर. व्हाट डज मैचिंग कंसेप्ट स्टेट? 1 ईयर का इनकम, 1 ईयर का एक्सपेंस. तो सैलरी भी एक्सपेंस है तो 1 ईयर का ही लेने का.
सामने इनकम भी 1 ईयर का, तो ही मैच होगा, तो ही कंपैरिजन पॉसिबल होगा। अगर आप 1 महीने की इनकम दिखा रहे हो और 15 महीने की सैलरी दिखा रहे हो, 12 months की इनकम 15 months की सैलरी, 12 months की इनकम 10 months की सैलरी, it will be a mismatch. You won't get a correct understanding of whether your business is progressing or declining over years. क्योंकि आपने आड़ा टेढ़ा 12, 15, 17, 18, 19, 20 कुछ भी महीनों का एक्सपेंस और इनकम मैचअप करके बना दिया है अकाउंट्स। Are you getting this? So that's why this accrual system is very important. क्योंकि आप फाइनल अकाउंट में क्या कर रहे हो, जो भी इनकम दिखा रहे हो, whether it is sales income, whether it is your interest income, whether it is rent income, whether it is commission income, all incomes are for a span of 12 months. इस 12 months में जो हुआ वो इनकम, जो अर्न किया वो इनकम। ओके, पैसे तो ज्यादा भी, आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मेरा क्लास का बिजनेस है, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो। सपोज देयर आर 10 स्टूडेंट्स and their fees is let us say 10,000 rupees, तो मुझे 1 लाख रुपीस मिलना चाहिए, और ये आपका 12th स्टैंडर्ड का फीस है। तो 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा आपका अप्रैल से, तो अप्रैल टू मार्च की फीस मेरे को होनी चाहिए 1 लाख रुपीस अर्न करना चाहिए। लेकिन अभी यू नो दैट एडमिशन हैव स्टार्टेड एंड ऑल ऑफ यू हैव टेकन द एडमिशन, 1 लाख रुपीस आपने मेरे को दे दिया अभी के अभी, बट हैज द ईयर बिगन? नो। सो लेकिन पैसे तो आ गए, तो इज इट माय करंट ईयर्स इनकम? इज इट माय 2021 का इनकम की 21-22 का इनकम? 21-22 का इनकम। सो कैन आई शो दिस 1 लाख इन माय करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? नो, क्योंकि उसके सामने कुछ खर्चा तो है नहीं, तो मेरे को लगा वाह बिजनेस अच्छा कर रहा है, 1 लाख की इनकम, नो खर्चा, फुल 1 लाख प्रॉफिट। अरे बापा नेक्स्ट ईयर बाकी है, तो 21-22 में मैं सब खर्चा करूंगा, इस पे आपके स्टेशनरी पे खर्चा करूंगा, कम्युनिकेशन पे खर्चा होगा, ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, क्लास का रेंट का खर्चा होगा, ये सब खर्चा होगा इन द ईयर 21-22। लेकिन इनकम सपोज मैंने पहले दिखा दी, तो नेक्स्ट ईयर मुझे लगेगा बिजनेस बहुत खराब कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट ऐसा तो कुछ है नहीं, मैंने ही गड़बड़ कर दी थी, मैंने नेक्स्ट ईयर की इनकम पहले दिखा दी, इसलिए ये लफड़ा हो गया। आर यू गेटिंग दिस? तो ऐसा नहीं होने के लिए ही हम लोग अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं। अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है, जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो, जिस ईयर में आप एक्सपेंस इनकर करते हो, उसी साल के पीएनएल में दिखाओ। जिस साल में अर्न करते हो, अर्न, माइंड यू, आई एम नॉट टेलिंग यू रिसीव्ड, पैसे पहले ही आ गए, बट इनकम अभी नहीं दिखाऊंगा मैं। इनकम कब दिखाऊंगा? इन द नेक्स्ट ईयर, एक्चुअल टाइम, व्हेन द इनकम का टाइम कम्स। टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस यू रिकॉर्ड ऑन टाइम बेसिस, अर्न्ड एंड इनकर्ड बेसिस। ओके, सो इन अवर एग्जांपल, ये समझा एग्जांपल मेरा? इंटरेस्ट वाला आपको ये समझा, अपना फीस वाला एग्जांपल समझा? वैसे कोई भी बिजनेस है ना, वो ऐसे ही करेगा। एनी बिजनेसेस, ओके, एनी बिजनेसेस दे विल डू लाइक दिस। एयरलाइन बिजनेस है, एयरलाइन बिजनेस का समझो अक्टूबर का महीना चालू है, ओके, अक्टूबर के महीने में पैसेंजर्स ने दिसंबर के फ्लाइट की टिकट्स की बुकिंग कर ली। अक्टूबर के महीने में या फिर नेक्स्ट ईयर की, चलो अक्टूबर के महीने में नेक्स्ट ईयर के अप्रैल टू मार्च के फ्लाइट की टिकट की बुकिंग्स कर दी। तो क्या वो एयरलाइन बिजनेस अक्टूबर के महीने में पूरी इनकम दिखा देगा उन फ्लाइट टिकट्स की? वो तो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग कर रही हैं। ये साल में दिखाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि खर्चा तो है ही नहीं, खर्चा सब हो रहा है नेक्स्ट ईयर। फ्यूल चार्जेस, सैलरी का, स्टाफ का सैलरीज, एयर होस्टेस का सैलरी, पायलट का सैलरी, सब नेक्स्ट ईयर हो रहा है उसका, तो नेक्स्ट ईयर उसको लॉस दिखेगा। इज दिस अ करेक्ट वे टू मेंटेन द अकाउंट्स? नो। ऑन द अदर हैंड, सपोज मेरा क्लास बिजनेस है, ओके, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, the year is from April to March, year is from April to March, okay, I'm supposed to receive 1 lakh from the students. मेरे को एक स्टूडेंट ने अप्रैल टू मार्च तक, पूरा साल खत्म हो गया, पैसा दिया ही नहीं, नेक्स्ट ईयर दिया पैसा। अप्रैल टू मार्च पूरा साल खत्म हो गया, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी, उसने मुझे नेक्स्ट ईयर पैसे दिए 10,000 रुपीज, वन स्टूडेंट।
So tell me, is that 10,000 which I'm receiving in the next year, is that an income of next year or of current year, April to March? Income year. of current year Income of after current giving year the only. benefits of the current year. Exactly. So are you getting that Income logic? receivable. Sorry? Income receivable ना. इनकम रिसीवेबल है वो, एब्सोल्युटली राइट. बट इनकम कौन से साल की है? करंट ईयर की है, अप्रैल टू मार्च की है? Current year ki. यस, Current year. करंट. Because the benefit has been given. Benefit has been expired in the current year. Benefit has been given in the current year. Okay. So this is the concept of expense and income. पैसे आने जाने इंपॉर्टेंट नहीं है. आगे पैसे आए, पीछे पैसे आए, आगे पे करो, पीछे पे करो, चलेगा. लेकिन एक्सपेंस का जो अकाउंट है वो तभी डेबिट होना चाहिए जब टाइम आए. इनकम का जो अकाउंट है तभी क्रेडिट होना चाहिए जब टाइम आए. ओके, टाइम बेसिस पे. आगे पीछे और 4 अकाउंट्स हम लोग यूज करते हैं. आगे पीछे के लिए मैं बताऊंगा अभी कैसे करते हैं. पहला एग्जांपल लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का. ठीक है, सैलरी है समझो. आपकी साल की सैलरी कितनी है? 12,000. ओके, स्टे विथ मी नाउ. अप्रैल टू मार्च की सैलरी है 12,000. 1,000 रुपया पर मंथ आप एम्प्लॉय को सैलरी देते हो. आपने इस साल अप्रैल टू मार्च के बीच में खाली 10,000 की सैलरी पे की है. तो क्या आप 10,000 दिखा दोगे इस साल का एक्सपेंस में? Would that be a correct method? 10 तो will show, but will show outstanding also. Exactly. 2,000. 10 तो will Outstanding show of only 2,000. plus how much? 2,000. Okay. तो हम लोग एक एंट्री पास करते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की भी एक एंट्री होती है. नॉर्मल एक्सपेंस की ये एंट्री तो आपने कर दी है, सैलरी टू कैश 10. सैलरी टू कैश 10,000 तो हो चुका है साल के बीच में, आपने जब जब पे किया होगा तब. अभी कितना बाकी है और मुझे बताओ, हाउ मच सैलरी इज लेफ्ट टू बी पेड? 2,000. 2,000. तो उसकी भी जर्नल एंट्री होती है. हमने किया भी है. डू यू रिमेंबर द जर्नल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? वी डिड इट एट द टाइम ऑफ डूइंग जर्नल. Salary to creditor. It is salary, somewhat right, yes. Salary account debit to Outstanding salary. outstanding salary account. Salary account debit to outstanding salary So account. outstanding salary. Now listen. Salary to outstanding salary. This is the journal entry. Remember this entry very clearly in your head. Very, very important entry. Very, very important entry. This is for outstanding expense. This is for outstanding expense. Okay. What do you mean by outstanding expense? काम हो गया है, पैसे देने बाकी है. काम हो गया है, पैसे देने बाकी है. एक एयरलाइन बिजनेस है, अप्रैल टू मार्च में उसको 10 करोड़ रुपए का टिकट कलेक्शन हुआ. 10 करोड़ रुपए का टिकट कलेक्शन हुआ. उसमें से 5 करोड़ रुपया एयर टर्बाइन फ्यूल में चला गया. प्लेन का फ्यूल होता है ना, 5 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया फ्यूल में. बचा 5 करोड़. उसमें उसको 1 करोड़ रुपया एयर होस्टेस स्टाफ को सैलरी देने का है. बचा 4 करोड़. और 1 करोड़ उसको पायलट की सैलरी देनी. उसने पायलट की सैलरी नहीं दी है. 1 करोड़ रुपीस की पायलट की सैलरी नहीं दी है. 10 करोड़ का इनकम है, 6 करोड़ का एक्सपेंस है. ओके, 1 करोड़ अभी भी देना बाकी है. पायलट की सैलरी देना बाकी है. तो मुझे सोच के बताओ, व्हाट इज हिज टोटल एक्सपेंस? इज इट 6 करोड़ और 7 करोड़ फॉर द करंट ईयर? 7 crore. 7 करोड़. ऑब्वियसली 7 करोड़. व्हाई? 1 करोड़ पायलट की सैलरी अगर देना बाकी है तो क्या वो एक्सपेंस नहीं हुआ? हुआ ना. काम तो किया है बेचारे पायलट ने. उड़ाया है प्लेन को 12 महीने और इसी 12 महीने में उड़ाया है. आर यू गेटिंग दिस? तो पैसा न देने से वो एक्सपेंस नहीं होना ऐसा थोड़ी होता है. पैसा दो या ना दो, एक्सपेंस तो हो ही गया. तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंस बिलोंग्स टू द करंट ईयर. एक्सपेंस को डेबिट करो, लेकिन हैव यू पेड द मनी येट? So you keep it outstanding in the form of liability. This is a liability. ये पैसा देना बाकी है. You know what is credit purchase of goods? Yes. Can you tell me the journal entry for credit purchase of goods? Purchase to Purchase to creditor. similar to this.
It is the same thing which you are doing since senior KG. Purchase to creditor का मतलब यही है. Purchase expense belongs to this year and creditor पैसा देना बाकी है. समझा? तो आप थोड़ी खाली कैश परचेज रिकॉर्ड करते हो, आप तो क्रेडिट पे भी रिकॉर्ड करते हो. दैट इज व्हाट इज अक्रूवल सिस्टम. पैसे आगे पीछे जाए नॉट इंपॉर्टेंट. एक्सपेंस इनकर हो गया, डेबिट द एक्सपेंस. एक्सपेंस बिलोंग्स टू करंट ईयर. वैसे ही सैलरी बिलोंग्स टू दिस ईयर, सो डेबिट करो 2000. सैलरी को डेबिट करो. पैसे देते तो 2 कैश आता, पैसे नहीं दिए तो 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा दो. आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? क्रेडिटर क्या है आपके लिए? व्हाट इज अ क्रेडिटर फॉर द बिजनेस? Liability. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी क्या है बिजनेस का? Liability. लायबिलिटी. फिर नेक्स्ट ईयर समझो आप ये पैसा चुकाते हो, तो क्रेडिटर को पेमेंट करने की क्या एंट्री होती है? व्हेन यू पे कैश टू योर क्रेडिटर, व्हाट इज द एंट्री यू पास? Cash. क्रेडिटर को चुकाया, अजय को पैसा दिया, Ajay to cash. अजय टू कैश, क्रेडिटर टू कैश. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे ऑफ करने की एंट्री क्या होगी नेक्स्ट ईयर में? Reduce it from the cash and नहीं, reduce it from एंट्री आई एम आस्किंग. सिंपल Outstanding जर्नल salary. एंट्री. Outstanding salary to cash. It's simple as that. Yes or no? If you pay off your creditors, it is creditor to cash. If you pay off your outstanding salary, it is outstanding salary to cash. Did you all get this? So outstanding expense is the next adjustment. ध्यान से देखना सब लोग. Read that point in your sheet. Adjustment number 4. Read it. क्या दिया? Adjustment number 4. देखो. Outstanding expense. They are the expenses which are already incurred but not paid. Can you all see that? Already incurred but not paid. I guess there is some error over there. It should be liability. Liability. Yeah, that's why I told you. Make that correction. They are the expenses that are incurred but not yet paid. Did you get the meaning? अब उसकी journal entry क्या करोगे आप? It will be expense to outstanding expense. Outstanding expense की entry क्या होती है? Expense debit करो, expense बढ़ा, to outstanding expense देना बाकी है, उसको अलग से record करना पड़ेगा 2000 rupees. Okay? तो इसी चीज को अगर आप भूल गए record करना, you forgot to record this in your normal journal, so you will Gussaufy this entry in your final accounts. You will Gussaufy this entry directly in the final accounts. How will you do this? सैलरी चलो डेबिट हुआ तो बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा. तो सैलरी में क्या करोगे? What will you do to salary? प्लस या माइनस? plus. प्लस. सो प्लस सैलरी, सैलरी बढ़ रहा है तो ऐड टू सैलरी, ऐड टू सैलरी, सैलरी बढ़ा दो. अभी सैलरी कितना हो जाएगा? 10 से 12 हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली. 10 था प्लस 2000 आउटस्टैंडिंग. गॉट इट? तो इस साल 2000 रुपया देना बाकी था, बट एक्सपेंस बिलोंग्स टू करंट ईयर, सो आई ऐड टू द एक्सपेंस. एंड सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? What is the second effect? What is this outstanding salary for? Can we employ to whom we are paying the salary as our creditor? Absolutely. This outstanding salary is nothing but that employee only. He is our creditor only. But why are we using outstanding salary? Because there may be 10, 12 employees जिसको पैसा देना बाकी है. तो सबको अलग अलग अकाउंट थोड़ी रखोगे. अजय सैलरी पेंडिंग, विजय सैलरी पेंडिंग, राम सैलरी पेंडिंग, राहुल सैलरी पेंडिंग, संजय सैलरी पेंडिंग. ओके? आपकी होटल है, आपके पास 50 एम्प्लॉइज है, सबकी सैलरी बाकी है, तो 50 अकाउंट थोड़ी बनाओगे, एक ही अकाउंट में दिखा दोगे सब. व्हाट इज दैट वन सिंगल अकाउंट? आउटस्टैंडिंग सैलरी. व्हाट इज दैट वन सिंगल अकाउंट? आउटस्टैंडिंग सैलरी. गॉट इट? The salary बढ़ रहा है, add to salary, and outstanding salary is what? It's a liability. So where you will show outstanding salary? In your liabilities. उधर correction करो. Second effect assets दिया हुआ है, उधर correction करो, cut it and write it liabilities. Cut it and write it liabilities.
cut it and write it liabilities. You got that? Tell me. Outstanding salary. Outstanding salary. What is the journal entry for outstanding salary? या outstanding expense. Outstanding expense की journal entry क्या होती है? Journal entry. Expense to outstanding expense. Expense to outstanding expense. Expense to outstanding expense. Can you all see that? Expense बढ़ा कि कम हुआ? Increased. Increased. Simple logic. Expense debit हुआ तो बढ़ता है, तो expense बढ़ा, तो expense बढ़ रहा है ना, तो फाइनल अकाउंट में क्या करोगे? डायरेक्टली ऐड टू सैलरी. एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, तो ऐड टू सैलरी. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये क्या होता है? व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर द बिजनेस? एसेट और लायबिलिटी. लायबिलिटी होता है तो कहां दिखाओगे इसको? लायबिलिटी साइड पे. शो इट अंडर लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग सैलरी अंडर लायबिलिटी. इज दैट क्लियर? आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकंड इफेक्ट, इट इज लायबिलिटी. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? Yes. Now the last one, and then we move to the problem. So in liability, we'll add it to creditors, right? No need to add to creditor. Show it separately. Because creditors mein there are creditors of goods, and these are creditors for expenses. You need to show both the creditors separately. Creditors for goods separately, creditors for expenses separately. Okay. On the same line, suppose मेरे साल की सैलरी है सेम 12,000, लेकिन ऑपोजिट हो गया, मैंने ज्यादा पे कर दी. I paid 14 और मैंने एंट्री कर दी समझो सैलरी टू कैश 14. Would that be right? सैलरी टू कैश 14,000 करना? No, because my current year's expense is how much? It will be salary It to is cash 12. 5,000 and then prepaid salary to cash 2,000. Exactly right. I'm supposed to do what? Salary to cash 12,000 and prepaid salary to cash 2,000. Are you getting this? क्योंकि सैलरी टू कैश खाली मेरा 12,000 का ही एक्सपेंस है करंट ईयर का, मैंने 2,000 ज्यादा पे कर दिया. शुड आई डेबिट सैलरी फॉर दैट? नो, बिकॉज दैट इज माय नेक्स्ट ईयर सैलरी. उसको क्या बोला जाता है? प्रीपेड सैलरी. ये हमने किया था जर्नल में. तो करना था ये प्रीपेड सैलरी टू कैश एंड सैलरी टू कैश, लेकिन ये कर दिया तो क्या करो? सैलरी टू कैश ही मार दिया आपने 14,000. अब क्या करो? Prepaid, it is like a asset now, no? Because he has given in advance. हाँ, तो how will you rectify this thing? How will you rectify this thing? Think about it. How will you rectify this item? आपने गलती से सैलरी टू credit salary and debit We will prepaid salary. Absolutely right. Who was that? Forum. Very good. You will do this. You will do this. Prepaid salary to salary. Prepaid salary to salary. Very good. क्या किया मैंने? कुछ भेजे में गई बात? मैंने गलती ये कर दी थी. क्या कर दी थी? सैलरी टू कैश 14,000. मेरे को सैलरी को डेबिट करना था 12 से, मैंने गलती से कर दिया 14 से. नाउ आई एम ट्राइंग टू रेक्टिफाई इट. तो सैलरी को एक्स्ट्रा डेबिट मिल गया था ना, सैलरी को एक्स्ट्रा डेबिट मिल गया था, तो आई एम गिविंग इट अ क्रेडिट ऑफ 2,000. कम कर रहा हूं मैं. एंड प्रीपेड सैलरी क्या है? मेरा एसेट है. प्रीपेड सैलरी इज माय एसेट. वो अभी भी बेनिफिट मिलना बाकी है, नेक्स्ट ईयर मेरे को बेनिफिट मिलेगा. वी हैव डन जस्ट नाउ वन प्रीपेड एक्सपेंस, फर्स्ट एडजस्टमेंट. व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज द फर्स्ट एडजस्टमेंट वी डिड? Closing stock of Closing stock of goods. What was closing stock? Prepaid purchase. Closing stock was prepaid purchase. तो हमने क्या किया? परचेज में से कम किया और एसेट में डाल दिया ना. सेम चीज है, सैलरी को भी वही करना है. सैलरी को भी सेम, प्रीपेड सैलरी को भी सेम ही करना है. क्या करना है? लेस फ्रॉम सैलरी, क्योंकि ये प्रीपेड है. जैसे वहां पे लेस फ्रॉम परचेज, यहाँ पे लेस फ्रॉम सैलरी. एंड सेकेंड इफेक्ट इज एसेट. क्यों लेस फ्रॉम सैलरी? सैलरी कम हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है. क्यों एसेट? क्योंकि प्रीपेड सैलरी इज एसेट, जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक वाज एसेट. व्हाट वाज क्लोजिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर? इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है? asset expense. एक्सपेंस बन जाता है ना, ओपनिंग स्टॉक बन के.
वैसे ये साल का जो प्रीपेड सैलरी है वो कब काम आएगा आपको? Next year. नेक्स्ट ईयर, तो वो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में चला जाएगा। ये साल के एक्सपेंस का पार्ट है कि नहीं है? It is asset for this year. एसेट फॉर दिस ईयर। सो ये लफड़ा कब आएगा, प्रीपेड का लफड़ा कब आएगा? जब आपने ऊपर ये मिस्टेक कर दिया। अभी बिजनेस है ना, ये मिस्टेक जानबूझ के करते हैं। Many businesses they don't keep a normal record, track record नहीं रखते हैं। You are understanding bookkeeping properly, that's why you know कि salary 12,000 की है तो I should debit salary by 12, credit cash by 12, prepaid next year का है तो prepaid salary to cash मारना चाहिए। This is the correct way of doing, but businesses क्या करते हैं, they become थोड़ा थोड़ा lethargic in this matter, और lethargic होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग क्या करेगा, सैलरी टू कैश पूरा 14 ही मार देगा, फुल 14 सैलरी टू कैश मार देगा, फिर बोलेगा चलो लास्ट डेट पे एडजस्ट कर लेंगे फाइनल अकाउंट्स के वक्त। अभी सैलरी टू कैश मारेगा और लास्ट डेट पे ये एंट्री मार देगा, क्या मार देगा, प्रीपेड सैलरी टू कैश, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी मार देगा। इसका इफेक्ट सेम ही हुआ। आपको जो करना था ना, आपको क्या करना था, सैलरी टू कैश 12,000 और प्रीपेड सैलरी टू कैश 2,000। अब इन दोनों एंट्री को आप मर्ज करोगे ना तो आपको यही एंट्री मिलेगी, सैलरी टू कैश एंड प्रीपेड सैलरी टू कैश। ये वाले जो एंट्रीज हैं, ये जो मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूं और ये जो रेड में हाईलाइटेड है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट सेम है। ग्रीन वाला एंट्री और रेड वाला एंट्री दोनों का कंबाइंड इफेक्ट सेम है। आप ऐसे करो, सैलरी टू कैश 12 करो, फिर प्रीपेड सैलरी टू कैश 2 करो, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग। ऐसा करो, या फिर आप सैलरी टू कैश 14 करो और लास्ट डेट पे ये एडजस्टमेंट एंट्री मार दो, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी 2000। आपको इफेक्ट सेम ही मिलेगा। इन दोनों को मर्ज करके देखो, आपको इफेक्ट सेम ही आएगा। आर यू गेटिंग दिस? सो नॉर्मली बिजनेस क्या करते हैं, ये करते हैं कि ये करते हैं, तो ये करते हैं, ये नहीं करते। पूरी की पूरी सैलरी डेबिट कर देंगे और फिर लास्ट डेट पे जितना प्रीपेड है उतने से प्रीपेड को डेबिट करेंगे, सैलरी को क्रेडिट कर देंगे। सो व्हाट इफेक्ट यू विल गिव इन द फाइनल अकाउंट, वीआईपी इफेक्ट। सैलरी में प्लस करोगे कि माइनस, 14,000 में 2,000 प्लस करोगे कि माइनस? माइनस, क्योंकि इट डजंट बिलोंग टू दिस ईयर। जैसे याद है क्लोजिंग स्टॉक परचेज में से माइनस किया, वैसे प्रीपेड सैलरी को सैलरी में से माइनस कर देने का। एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट, व्हाट वाज द सेकंड इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? It is treated as an expense for the next year. प्रीपेड सैलरी इज आल्सो एन एसेट। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कैसा नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस बनता है, वैसे ये प्रीपेड सैलरी भी नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस बन जाएगा, सिंपल एज दैट। कंसेप्ट बैठा दिमाग में? ऑल 5 एडजस्टमेंट्स क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? माइनस फ्रॉम परचेज के जगह ट्रेडिंग क्रेडिट, उधर खाली याद रखना है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। ऑल ऑफ यू आर विथ मी? क्लोजिंग स्टॉक 2 इफेक्ट्स, ट्रेडिंग क्रेडिट and assets. Number 2, depreciation. What are the 2 effects of depreciation? What are the 2 effects of depreciation? P&L, P&L debit and from the asset, and reduce it from the asset. P&L debit and subtract from the asset. Okay. Third adjustment was appreciation. Appreciation में क्या होगा? credit side of P&L and then added to Credit side of P&L and add to the asset. Got that? Opposite of depreciation. Adjustment number 4, outstanding expenses. क्या करोगे outstanding expenses? added to the expense. Added to the expense की subtract from the expense. add Add to the expense. And second effect? liability side. Liability side. Increase. Fifth one is prepaid expense. क्या करोगे prepaid expense? Subtracted from the expense and then show it on Less from the expense, it doesn't belong to current year, and show it on the asset side, just like closing stock. Okay, next year काम आएगा. All 5 adjustments clear? Now let's start with the problem number 2. Take out problem number 2, all of you.
Given below is the trial balance of Mrs. Vandana as on 31st March 2010. Given below is the trial balance of Mrs. Vandana as on 31st March 2010. Mark it down. सबसे पहला ट्रायल बैलेंस आइटम को मार्क करते जाओ सब लोग. Where you will show cash in hand. What is cash in hand? Assets. Right there, So A, balance sheet. balance sheet. A लिख दो, A for apple. Where will you write sundry debtors? Asset. Assets. Bills receivable? Asset. Assets. A. पहले तीन A. Opening stock, not closing stock. Opening stock. Where you will show opening stock? Trading account. Trading account debit side. Remember, first item of the current year, first expense. Last year का closing becomes current year का opening. तो trading debit TD, T/D, TD. Purchases कहाँ जाएगा? Purchases. Trading debit. Trading debit, Trading. TD. Sales return क्या करना है? Subtract. Trading Less account from credit. sales. So minus sales, less from sales. Less from sales. Salaries, where you will show salaries. P&L account debit. P&L account debit side, PLD, office related expense. Wages, where you will show wages. Trading TD, debit. trading debit. Okay, wages workers का होता है, workers production से relate करते हैं. तो trading debit, Ishita, are you marking? Wages are trading debit. Advertisement कहाँ जाएगा? P&L. P&L debit. P&L debit, indirect expense. Okay, not related to purchase or production. P&L debit, PLD. Discount allowed. P&L debit. P&L debit, again indirect expense, P&L debit. Machinery, Asset. P&L assets. debit. ओ भाई मशीनरी ने क्या sorry, ખર્ચામાં sorry, નાખે છે depreciation. ઉઠાવી નાખીશ એટલું મોટું લોસ આવશે ને બિઝનેસમાં દુકાન બંધ મશીનરી ઇઝ એસેટ મશીનરી ઇઝ એસેટ એ कैरेज P&L, अरे trading debit. खाली याद है बताया था कैरेज फ्रेट और रॉयल्टी इफ ओनली कैरेज ओनली फ्रेट ओनली रॉयल्टी इज गिवन तो कहाँ जाता है ट्रेडिंग में कि पीएनएल में We assume them to be paid, so trading. दे आर पेड ओनली पीएनएल में भी पेड ही अरे रहते they हैं are ऊपर भी related पेड to purchase and production. हाँ दे आर रिलेटेड टू परचेज इनवर्ड्स अज्यूम करने का इनवर्ड्स so that will go to trading debit only carriage will go to trading debit TD इंश्योरेंस कहाँ जाएगा Trading. ओनली But इंश्योरेंस equity. PNL debit only insurance means normal insurance premium factory insurance दिया तो trading okay normal insurance दिया तो PNL debit drawings where you will put drawings Liability. capital में से Minus 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 from capital CAP minus capital में से minus Where we will put insurance. PNL debit insurance means normal insurance premium on assets you pay na insurance premium on assets on goods on assets that is normal insurance if factory insurance is given then trading normal insurance is PNL. Investments are asset four types intangible tangible investment and current asset all investments are asset drawings less from capital likha octroi duty Trading debit. state district में लाने का tax अभी निकल गया GST but still there in the syllabus so trading debit octroi duty state या district में लाने का tax input inward tax trading debit TD furniture asset on the credit side bank loan what is bank loan Or income office expense. rent. Office rent sorry office rent P&L debit. PNL debit okay PNL debit indirect expense bank loan It is a bank loan liability. liability L creditors liability आपको शॉर्टकट याद है ना डेबिट वाला सब आइटम कैन बी एक्सपेंस और एसेट क्रेडिट वाला सब आइटम कैन बी इनकम और लायबिलिटी उधर ही जा सकते क्रेडिट और लायबिलिटी सेल्स P&L, अरे
हाँ, trading account credit side. ट्रेडिंग Trading अकाउंट credit क्रेडिट साइड, ये एक ही इनकम है सेल्स जो जाती है ट्रेडिंग क्रेडिट में, बाकी सब P&L क्रेडिट. Remember, only sales, one direct income. So TC. Purchase return, what do you do? Purchase return? Subtract It from will be purchase. subtracted Less from purchase. purchase. Minus PUR. Pur minus. Minus PUR. Bills payable? Liability. L. Discount received? Indirect income. So कहाँ जाएगा? P&L P&L account credit. credit. PLC. Discount received is indirect income. So P&L credit. PLC. Capital? Liability. Liabilities. L. Capital is liability. First item on liability. Capital. Adjustments. Closing stock of goods as on 31st March 2010 valued at 21,000. What is 31st March 2010? Last date. Closing stock. What are the two effects of closing stock? Sir, we'll, in the trading account, we'll put it as by closing stock. Trading And credit in the asset, and we'll add it. asset. Write there T's trading credit slash asset. TC slash A trading credit slash assets. Depreciate furniture by 5%, machinery by 10%. Depreciation था आप भूल गए, अभी घुसाना है फाइनल अकाउंट में. सोचो एसेट बढ़ेगा कि कम? फर्नीचर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और मशीनरी में से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे एसेट्स में, बैलेंस शीट में. And what is the second effect? Minus from machine, minus from furniture. ये तो asset कम हुआ. Second effect, what is depreciation for the business? हाँ. Capital में से reduce. नहीं, क्यों capital? P&L debit. अभी तो किया expense. P&L debit. It is an expense. Hello. Depreciation, Yes. indirect expense, P&L debit. Just now we discussed, right? Rutwa, what happened? समझा ना? Depreciation, P&L debit is your expense and asset का value कम हो गया तो minus from machine and minus from furniture. All of you got that depreciation part? Yes. Third one. Outstanding salary 1,000 and wages 500. Outstanding salary मतलब क्या? ऊपर देखो कितना सैलरी दिख रहा है, ऊपर चेक करो how much salary is there. The salary that is yet to be paid, so it should be added to salaries. Will you add or will you subtract from salary outstanding Add salary? outstanding है तो add. Add होगा Prepaid है तो पक्का? subtract. Add हाँ, होगा पक्का? हाँ. Others, what about others? Only Vidushi is sure over here. Outstanding salary का मतलब समझा? ऊपर जो सैलरी दिख रहा है ना आपको 11,000 वो आपने पे किया है, 1,000 अभी भी देना बाकी है. तो एक्सपेंस ये साल कोई बिलोंग कर रहा है, अभी एंट्री किया हमने, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर, राइट? सैलरी में क्या करोगे? ऐड करोगे कि लेस करोगे? Add to salary plus. Add to salary. Okay. Similarly, wages are outstanding. ऊपर कितना wages दिख रहा है? ऊपर wages दिख रहा है आपको 2,000. Actually हाँ 500 भी हुआ है इनकर, आपको देना बाकी है पैसा, तो फिर भी उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा. एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर, सो ऐड टू सैलरी एंड ऐड टू वेजेस. ये तो हुआ फर्स्ट इफेक्ट. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिजनेस के लिए क्या होगा? बोलो. Sir, and liabilities will add it not to outstanding Exactly. salaries. This will be liability. दोनों का second effect is liability. Okay. Outstanding salary, outstanding wages, दोनों का ये दो एडजस्टमेंट दिया हुआ है. एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एक आउटस्टैंडिंग वेजेस है. जैसे डेप्रीसिएशन था ना, दो डेप्री, वैसे दो सैलरी है, दो आउटस्टैंडिंग है. एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एक आउटस्टैंडिंग वेजेस है. Add to salary and liability, add to wages and liability. Both the adjustments का effect are same. Add to respective expense and liabilities. Why liability? Did you understand why liability? Imagine credit Because it has purchase. already been incurred for this year and we are yet to pay them. Yet to pay Are them. creditors for that amount. They are creditors for that amount. Did you all get this? No, sir. No.
आउटस्टैंडिंग सैलरी का मीनिंग देखो, ऊपर आपने क्या किया है, सैलरी टू कैश 11,000 पास किया है, ऊपर दिख रहा है ना सैलरी, इसलिए सैलरी 11 दिख रहा है ना, लेजर से आया है वहां पे। अभी काम हुआ है 12,000 का, कैसे पता चला, नीचे दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000। वर्कर ने काम किया है 12,000, पायलट ने काम किया था ना 1 करोड़ का, वैसे यहाँ पे काम 1,000 का एक्स्ट्रा हो गया। तो ये 1,000 करंट ईयर का एक्सपेंस है कि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है? Next year. हाउ नेक्स्ट ईयर? काम यही Current year सॉल्व, we'll take only that much how much is done now. हाउ मच इज डन, नॉट हाउ मच इज पेड। ऊपर जो दिख रहा है ना वो पेड है, 11,000 which you are looking at is paid। तो पेड खाली एक्सपेंस, वही एक्सपेंस नहीं दिखाना है, जो इनकर्ड है वो दिखाना है। तो वर्क डन इज वर्थ 12,000 बट पैसा दिया है 11,000। दैट इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ शोइंग एक्सपेंस। सपोज एंटायर ईयर दैट वर्कर वर्क फॉर 12 months, तो 12,000 इज हिज सैलरी, मैंने 1 रुपया भी सैलरी पे नहीं किया है, पूरा पेंडिंग है, तो डज दैट मीन दैट देयर इज जीरो एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर? नो। सो पेड एक्सपेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू विल कन्वर्ट दैट पेड टू इनकर्ड। आपको वो सैलरी को इनकर्ड बेसिस पे दिखाना है, कितना काम हुआ है। तो काम कितना अमाउंट का हुआ है, तो 12,000, तो 1,000 इज आउटस्टैंडिंग। 1,000 को आपको ये एंट्री पास करके एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या एंट्री करना पड़ेगा? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है ना एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को मैं बढ़ाऊंगा 1,000 से और बढ़ाऊंगा, एंड टू कैश नहीं करूंगा क्योंकि पैसा नहीं जा रहा है। I will show it as pending salary on the liability side. Just like we show credit purchase. What is the entry for credit purchase? Purchase to creditor. Purchase बढ़ रहा है और सामने creditor भी बढ़ रहा है ना। क्या मैं ऐसे बोल दूं कि चलो ये तो क्रेडिट पे मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा? Can we do like that? We record it, right? We record it. We record cash purchase also. We record credit purchase also. So we record cash salary also. We record credit salary also. But it's same thing it is. Purchase is an expense, like that salary is your expense. And creditor is your liability, like that outstanding salary is your liability. How much? 1,000. So total expense is 12,000. Got it? So 1,000 you add to your expense, belongs to this year. And second effect is liability. Dena baki. Got it? फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग सैलरी। बैठा दिमाग के सबके, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग वेजेस का भी सेम है, वर्कर ने काम कितना किया है 2,500 का, लेकिन पैसा कितना दिया हमने 2,000। सो व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर? इज इट 2,000 और 2,500? 2,500. 2,500। समझा क्यों? कंसेप्ट जाना चाहिए, हेलो, नहीं तो गड़बड़ होती रहेगी आगे भी। मुझे बताओ इस साल टोटल वेजेस कितना होना चाहिए एक्सपेंस के तौर पे? शुड इट बी 2,000 और 2,500? बोलो, हाउ मच शुड बी अवर टोटल वेजेस, 2,000 और 2,500? 2,500. 2,500 होना चाहिए, करेक्ट। ऊपर कितना दिख रहा है? 2,000। तो आप क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में ऐड करोगे कि सबट्रैक्ट? ऐड। दो यू हैव नॉट पेड, इट इज एन एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर, सो यू ऐड। खाली रोकड़े में दिया वही एक्सपेंस नहीं होता, जो इनकर हुआ है, देना बाकी है, वो भी एक्सपेंस हो जाता है। तो वेजेस में ऐड हो जाएगा, और देना बाकी है तो उसको क्या बोलोगे? Outstanding wages. What is the second effect of outstanding wages? Liability. Liability. The second effect will be liability. Can you see that? Add to salary liability, add to wages liability. Liability का मतलब they are your creditors, उनको पैसा देना बाकी है। नेक्स्ट ईयर जब आप पे करोगे तभी क्या एंट्री करोगे? क्रेडिटर को पे करने की क्या एंट्री करते हो? What entry you pass for paying your creditors? Creditor to cash. Creditor to cash. So what entry you will pass for paying outstanding wages?
Outstanding wages. Outstanding wages to cash. What entry will pass for paying outstanding salaries next year? Outstanding salary. Outstanding salary salaries to cash. Are you getting that? Right now, salary to outstanding salary, and then outstanding salary to cash. Right now, wages to outstanding wages, and then outstanding wages to cash. Okay. Next one. Fourth adjustment पढ़ो क्या दिया आपको? Prepaid insurance. Prepaid insurance is 300. Look at top in the trial balance. How much is insurance? Insurance is 1,800. 1,800. Now, what are they saying? जो 1,800 आपने पे किया है, क्या वो पूरा का पूरा इस साल का है? Extra है कितना एक्स्ट्रा है? 300 से. 300 से एक्स्ट्रा है. 300 rupees is extra, right? Is that 300 current year's expense or next year's expense? Next year's expense paid in advance. Paid in advance. Next year का है, तो इस साल में क्या करना है? ऐड करना है कि माइनस करना है? Minus. बोलो. माइनस होगा, इंश्योरेंस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. पक्का? हाँ. क्यों माइनस होगा समझना? हाँ. एंट्री करेंगे ना, माइनस क्यों कर? अरे भाई एंट्री तो जर्नल में होगा, यहाँ पे तो प्लस माइनस करना है ना, एंट्रीज नहीं करनी है तुमको. एंट्री जर्नल प्रॉपर में होगा, फाइनल अकाउंट में सीधा प्लस माइनस ही करना है. माइनस सब्ट्रैक्ट. तो फाइनल अकाउंट्स में क्या करोगे? प्लस की माइनस? सिंपल. माइनस. थिंक ऑल ऑफ यू. अरे it will be minus. 1800 में से 300 बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर. तो आपने बेसिकली क्या किया है? एंट्री में ऐसा होगा, आपने ये कर दिया है, इंश्योरेंस टू कैश 1800. आपको करना था क्या? आपको करना था ये इंश्योरेंस टू कैश 1500 and prepaid insurance to cash 300. This was the correct way of doing it. क्योंकि ये साल का एक्सपेंस खाली 1500 ही था, 300 was prepaid. तो करेक्ट था ये इंश्योरेंस टू कैश, प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश. बट आपने ये नहीं किया है, आपने क्या कर दिया है? इंश्योरेंस टू कैश मार दिया है 1800. तो अब इसको रेक्टिफाई करना है. हाउ विल यू रेक्टिफाई? हाउ विल यू एडजस्ट दिस थिंग? Prepaid insurance to insurance. Prepaid insurance to insurance. तो prepaid insurance to insurance. कितना prepaid insurance to insurance? 300. In a simple manner, 1800 रुपीज जो आपने पे किया है ना, वो ये साल को बिलोंग नहीं करता है पूरा का पूरा, उसमें से खाली 1500 बिलोंग करता है, 300 एक्स्ट्रा है. जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक. याद आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक? टोटल परचेज में से पूरा परचेज ये साल का नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का है. तो वैसे ये प्रीपेड इंश्योरेंस का 300 नेक्स्ट ईयर का है. तो प्लस करना है कि माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस? थिंक. Minus because it doesn't belong to this year. Remove it from insurance. And where do you put closing stock? Sir, under asset. Prepaid Assets. So where will you put prepaid insurance? Asset. Assets. So what are the two effects of prepaid insurance? Plus or minus? पहला चीज बताओ. इंश्योरेंस में क्या करना है? तो माइनस. माइनस करना है, माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस. And what is the second effect? Assets. You'll show it under asset as your prepaid insurance. Getting that? जर्नल एंट्रीज अभी पास नहीं करनी है. जर्नल एंट्रीज एंड ऑफ द चैप्टर विल डू. अभी खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताए थे. इधर सीधा प्लस माइनस का इफेक्ट देना है. प्लस माइनस का इफेक्ट बैठ रहा है दिमाग में? आउटस्टैंडिंग. रिया गांधी को समझा? आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करना है? सर है ना, डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग दोनों कंप्लीट कंफ्यूजन में ही है अभी भी. Okay, I'll explain it to you. Wait after the lecture. Outstanding expense. बाकी लोग को समझ में आ रहा है? क्या करना है outstanding expense? Add to expense की less. To expense. Add to expense. And second effect? Liability. Liability. क्योंकि देना बाकी है. What about prepaid expense? Subtract from the expense. Doesn't belong to this year. What about the second effect? Show as an asset. Show as an asset. Remove it from expense, show as an asset. Next year it will be used as an expense again. Next year it will be used as an expense again.
Okay, so prepaid expense and closing stock are one and the same. नाम अलग अलग है. Prepaid expense and closing stock are one and the same. Got that? So these are the effects. Just write these effects and keep. Okay, next lecture we'll actually solve the problem. Next lecture, 3 problems we are going to solve. This one and 2 more. So very, very important lecture. 3 problems of final accounts in the next lecture. Don't remain absent. Still, if you have any doubts, wait. I'll explain the concept again. Bye. See you. Take care. Bye, sir. Thank you, sir.